So today we will be discussing about Gauss hypergeometric differential equation. Gauss hypergeometric differential solve the Gauss hypergeometric equation 1 minus x dx square c minus we have p of x is equal to क्या होगा p of x जब हम इसको थ्रू डिवाइड करेंगे x इंटू 1 माइनस एक्स से तो p of x क्या आ जाएगा c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स और q of x क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब गौर से देखिए एट x इक्वल टू 0 नीदर दिस इज डिफाइंड और दिस इज डिफाइंड, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसका भी सिंगुलर पॉइंट इसका भी सिंगुलर पॉइंट। बट अगर आप x इंटू पी ऑफ एक्स ले लो और एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स ले लो तो ये वाला भी एनालिटिक हो जाएगा, ये वाला भी एनालिटिक, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 क्या है इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। x इक्वल टू 1 पे देखो ना ये डिफाइन होता है ना ये डिफाइन होता है, लेकिन x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। सो एट x इक्वल टू 1 both of these functions are not defined. Moreover, if I multiply this p of x by x minus 1 and q of x by x minus 1 whole square, then again these two becomes analytic. That means both x equal to 0 and x equal to 1 they are analytic. Sorry, they are regular singular points of this differential equation. Okay, so clearly x into px x square qx x minus 1 into p of x and x minus 1 का whole square into q of x are analytic. This means what? This means x equal to 0 and x equal to 1 are regular singular points of the given differential equation. ठीक है,
Hence, by method of Frobenius, we can assume the solution of the form. Hence, by method of Frobenius, we can assume solution of the form y is equal to summation n goes from 0 to infinity a n x की पावर n प्लस r. इफ उसका नाम फर्स्ट इक्वेशन दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसका नाम मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. Obviously this a naught is not equal to 0. Now on differentiating term by term, on differentiating term by term, we have dy by dx is equal to summation n goes from 0 to infinity a n r minus 1 and d square y by dx square. This is equal to, this is n plus r into n plus r minus 1 into a n x raised to power n plus r minus 2. Now let us substitute these values in differential equation first. Substitute the values of dy by dx and d square y by dx square. In first we have, क्या मिलेगा, शाबाश, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर into d square y by dx square is summation n goes from 0 to infinity n plus r minus 1 a n x की पावर n plus r minus 2 plus c minus a plus b plus 1 into x summation n goes from 0 to infinity n plus r a n x की पावर n plus r minus 1 minus ab summation n goes from 0 to infinity a n x raised to power n plus r is equal to 0. Is that okay? Now अब यहाँ पे देखिए x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, which is summation n goes from 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 a n x की पावर n plus r minus 1
minus summation n goes from 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 x की पावर n plus r plus c into summation n goes from 0 to infinity. This is n plus r a n x raised to power n plus r minus 1 minus a plus b plus 1 summation n goes from 0 to infinity n plus r into a n x की पावर n plus r minus a b is equal to 0. Is this okay? Everything is okay? Fine. Now let me take something as common if I can. This and this can be taken as common. So this will become n goes from 0 to infinity. जब मैं कॉमन लूँगा अंदर क्या बचेगा? यहाँ से भी n प्लस आर है, यहाँ से भी n प्लस आर, अंदर बचेगा n प्लस आर माइनस 1 और यहाँ से प्लस सी, इधर प्लस सी और n प्लस आर इंटू ए एन एक्स की पावर n प्लस आर माइनस 1 प्लस समेशन n प्लस आर वाली भी दो टर्म्स है, ये और ये, तो इसमें ले लीजिए आप प्लस जब हम ले लेंगे 3 है इसकी टर्म्स, 1 2 और 3, तो ले लीजिए प्लस कॉमन। जब मैं प्लस ले लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? दिस इज summation n goes from 0 to infinity. देखो सबसे पहले देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। कॉमन है इनमें n प्लस आर और ए एन भी है ना, ए एन मुझे यहाँ पे भी ए एन होना चाहिए, ए एन यहाँ भी है, ए एन ठीक है, n प्लस आर इंटू ए एन एक्स की पावर n प्लस आर, यहाँ पे क्या बचा? ऑन n प्लस आर माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस लिखिए ज़रा बाहर आप, n प्लस आर माइनस 1 a plus b plus 1 प्लस a प्लस बी प्लस 1 और प्लस ए बी। लेकिन पर इसमें ये काम नहीं आ रहा, कौन सा? इसमें n plus r किस में? लास्ट वाले टर्म में। ओके ठीक, फाइन, जस्ट अ सेकंड, there is no n plus r in it, fine, a n x की पावर n प्लस r n प्लस r माइनस 1 n
एन प्लस आर माइनस वन माइनस ए प्लस, ये वाला नहीं आएगा है ना, कौन कौन सा आएगा? ये माइनस माइनस वाला आएगा सर, ब्रैकेट का ए प्लस बी प्लस वन एन प्लस आर एन प्लस आर एन एक्स और एन प्लस ठीक है। और क्या बचा हमारे पास? आर माइनस ए बी is equal to 0. Fine. So what will we get now? What I have to do, मैं n प्लस आर करना चाहता हूँ ऊपर भी। ऊपर कैसे मैं n प्लस आर कर सकता हूँ? यहाँ पे और एक्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे n को मैं क्या लिखूँ? n प्लस वन, राइट n एज n प्लस वन थ्रू आउट, तो क्या मिल जाएगा? राइट n as n plus 1 in first summation we have, क्या मिलेगा? n goes from -1 to infinity. This is n plus 1 है तो n प्लस आर हो जाएगा, n प्लस आर प्लस c इंटू ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस और ए एन प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस और माइनस समेशन n गोज फ्रॉम, यहाँ से क्या करें हम? चलो लिखो 0 to infinity n plus r minus 1 plus a plus b plus 1 into n plus r a n x की पावर n प्लस आर माइनस, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, जस्ट अ सेकेंड, एवरीथिंग इज ओके, माइनस ए बी वाई तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सो फार सो गुड, ठीक चल रहा है। माइनस ए बी समेशन n गोज फ्रॉम 0 to infinity a n x की पावर n प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हर एक जगह से हमें क्या मिला? a n, ये x की पावर n प्लस आर तो हर एक जगह से मिला ना, ठीक है, तो दैट इज फाइन। बट अब एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो है ये -1 से शुरू हो रहा है, इसको कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से, तो माइनस वाला अलग कर देते थे हम पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 पुट करो n की जगह, शाबाश, r माइनस 1 प्लस c
इंटू ये क्या आएगा आर इंटू ए ज़ीरो शाबाश एक्स रेज टू पावर आर माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, समेशन कहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो, एन गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस आर प्लस सी एन प्लस आर प्लस वन, इसी के कंटिन्यूएशन में लिखना ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस, मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ इस पूरे को। क्या होगा, जैसे आर माइनस वन प्लस सी आर ए नॉट आर माइनस वन प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस आर प्लस सी इंटू एन प्लस आर प्लस वन इंटू ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस समेशन एन गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, शाबाश क्या होगा, एन प्लस आर माइनस वन प्लस इंटू एन प्लस आर ठीक, हाँ जी बच्चे ठीक है। आगे ये माइनस था ना, माइनस समेशन माइनस ए बी समेशन एन गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो सब में से समेशन एन गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉमन है और साथ में क्या है, एक्स की पावर एन प्लस आर, तो उसको आप लिख लीजिए कॉमन, बाकी जो चीज़ें आ रही, सो दिस इज आर माइनस वन प्लस सी आर ए नॉट एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस समेशन, उसको लास्ट में लिखते हैं, पहले देखो अंदर वाली कौन सी टर्म, दिस इज एन प्लस आर प्लस सी एन प्लस आर प्लस वन इंटू ए एन प्लस वन, ठीक है। एक तो ये आएगी, उसके बाद यहाँ से क्या आएगी, माइनस वन प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस वन, हाँ इंटू एन प्लस आर, ये आ गया यहाँ से, फिर माइनस ए बी ए एन, इसके साथ क्या था पहले वाले ए एन, तो इनके साथ ए एन लिखो ना, दिस इज ए एन, जस्ट अ सेकेंड ए एन प्लस वन, ठीक है ना, एन प्लस आर माइनस वन प्लस ए प्लस बी प्लस वन इंटू एन प्लस आर ए एन, भी ठीक है, माइनस ए बी ए एन और सब के साथ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब करो इक्वेटिंग टू ज़ीरो, उसके बाद हम आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्वेटिंग टू ज़ीरो, फ्रॉबनियस मेथड में हमें क्या निकालते हैं, इनिशियल इक्वेशन। इनिशियल इक्वेशन कैसे निकालती है, इक्वेटिंग टू ज़ीरो द लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स, द लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स, वी हैव, कौन सी है लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स,
r माइनस वन, तो इसका कोफिशिएंट क्या है r इंटू r माइनस वन प्लस सी इंटू ए नॉट इक्वल टू, कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ए नॉट तो नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस इट इज गिवन दैट ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस implies r इंटू r माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस implies r की दो वैल्यू, या तो r क्या होगा 0 या r क्या होगा c माइनस वन। सो इधर r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू c माइनस वन ही होगा या 1 माइनस सी, Yes, sir. 1 माइनस सी, R के साथ माइनस, ठीक है ना। r को मैंने कहीं नहीं दिया, r को अपनी साइड रखा, दिस इज 1 माइनस सी। अब पहले r इक्वल टू 0 को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ x, इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो कौन सी है, x की पावर n प्लस आर, क्या मिलेगा आपको, दिस इज n प्लस r प्लस c इंटू n प्लस r प्लस वन ए एन प्लस वन माइनस n प्लस r माइनस वन प्लस a प्लस b प्लस वन इंटू क्या है n प्लस r इंटू ए एन माइनस ए बी ए एन इज इक्वल टू 0। यहां से हमें ए एन प्लस वन मिलेगा, क्या मिलेगा, फाइन। सो दिस इंप्लाइज ए एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, ए एन प्लस वन को हम इसी तरफ रखेंगे ना, इनको उस तरफ भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, एक तो होगा ये, देखो ये माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसर, दिस इज एन प्लस आर प्लस ए प्लस बी इंटू एन प्लस आर प्लस ए बी, ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस ए बी और दोनों के साथ क्या है ए, और ये जो इसके साथ फैक्टर है ये कहाँ चला जाएगा नीचे, दिस इज एन प्लस आर प्लस वन इंटू एन प्लस आर प्लस सी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमें r की वैल्यू क्या लेनी है 0, सो व्हेन r इज इक्वल टू 0 ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन प्लस ए प्लस बी एन इंटू एन प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस सी इंटू ए एन, ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ फर्दर इसमें हो जाएगा, कैन आई डू सम मोर हेयर, सो ए एन प्लस वन हो जाएगा, खोलो इसको, एन स्क्वायर एन ए एन बी प्लस ए बी, फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पे देख लेना, एन प्लस वन एन प्लस सी इंटू ए, एन यहाँ से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस ए,
तो यहाँ पे b कॉमन ले लो n प्लस ए, तो n प्लस ए और n प्लस बी, तो कुल मिला के हमारे पास ये n प्लस 1 क्या होगा? सो a n प्लस 1 n प्लस a इंटू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और सॉरी इंटू ए एन। तो ये हमें क्या निकली? ए एन प्लस 1 की वैल्यू। यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? ए नॉट की, ए 1 की, ए 2 की, ए 3 की। तो वहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? वाई की। वहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी? वाई की। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने किसके लिए किया आर इक्वल टू किसके लिए? 0 के लिए, फिर 1 माइनस सी के लिए भी देखेंगे, ठीक है। फिर 1 माइनस सी के लिए भी इसको कैसे करना है, दैट वी विल सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।